Good morning, students. Today I'm going to explain a poem of your syllabus, A Tiger in the Zoo, which is just after the chapter Long Walk to Freedom. In this poem, the author has presented a contrast between the two different tigers. One which is living in the natural habitat, and another who was caught by the human being and put it in the cage. Here, I want to say that how the behavior has been changed of a free tiger and a tiger who is in cage. इस पोएम में जो ऑथर है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं कि किस तरीके से एक बाघ जो कि जेल के अंदर जंग या कहीं पिंजरे के अंदर है, उसके आचरण में, उसके बिहेवियर में, और एक ऐसा बाघ जो कि जंगल के अंदर है, उसके बिहेवियर में क्या बदलाव आते हैं. And during the reading the stanza, you try to guess in which stanza the author is following which part. Means whenever he is in jungle and when he is in the zoo. He stalks swiftly, proudly in his vivid different stripes. Now, see the line which start by the author, and through this he said he stalks. Stalks means walk stiffly or proudly. यानी एक जो शेर है अगर वो जंगल में है तो इज वॉक इन वेरी प्राउडली वे and his vivid stripes which are naturally given by the god on his body, and in this walking the few steps of his cage, and suddenly when he was in his cage, what are the difference between walking? The tiger which is in cage, he is unable to move as proudly as a free tiger, and that shows his confidence, that shows his proudness. The few steps of his cage, when he walk few steps in his cage on pads of velvet quiet, in his quiet rays. Pads of velvet quiet means though in the cage there is nothing which is harm the tiger's leg, and while walking in the jungle there are so many things which may harm, sometimes the quills or sometimes some other things which may harm to the tiger. And here on pads of velvet quiet in his quiet rage, and it shows the angerness of the tiger. He should be lurking in shadow. Now here the word lurking means to be hidden in place in order to do something wrong or harmful. Here the author takes us to the forest, and at that place he want to show that the tiger was in chance of going to attack on some prey, so he himself hide and try to get some prey. Sliding through long grass near the water hole where plump deer pass, and he was sliding means very softly walking. स्लाइडिंग का मतलब यहाँ फिसलना होता है, लेकिन फिसलना बिना आवाज़ किए. थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, एंड इन द फॉरेस्ट ही जस्ट टिक around the water place. Maybe it's a pond, maybe it's a river,
or something else, where the deer are soft, or small deers reach there to drink water, and the tiger is there for the chance of attacking on his prey. बहुत ही चुपके से वह उस बड़े घास के बीच से होता हुआ जाता है ताकि वह अपने शिकार को पकड़ सके। खासतौर पे वे हिरन जो कि बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और जो कि पानी पीने वहाँ आए हों। He should be snarling with a snapping and a display of teeth around houses at the jungle's edge. He should be snarling. When he was freely in his jungle, he was show his proudness through growling to making a sound. यानी जब भी वह जंगल में फ्री होता है तो आवाज़ करते हुए अपनी बहादुरी को, अपने पावर को दिखाता है। कई बार उसके दांत दिखते हैं जब वह दहाड़ता है तो। और जब वह जंगल के किनारे आता है तो बॉर्डर पे जो भी घर होते हैं उन घरों को अपनी आवाज़ से वो डराता है। उसके जो अपने बॉडी है इट्स अनकवर्ड, जो दांत है वो भी अनकवर्ड होते हैं। वाइल ग्रॉल, जब भी वो चिंघाड़ता है तो दांत, उसके बड़े बड़े दांत जो हैं, शार्प टीथ जो हैं वो दिखते हैं। उसके जो पंजे हैं वो डर पैदा करते हैं गाँव वालों पे। दैट ही वॉज सो मच पावरफुल, सो मच स्ट्रेंथन दैट इफ़ ही वंस अटैक नो वन विल एबल टू सेव हिमसेल्फ। यानी वह जंगल के किनारे बने हुए घरों में लोगों को अपने टेरर से, अपने पावर से, अपनी ताकत से, अपनी आवाज़ से वह डराता है। बट व्हेन ही वॉज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, और जब उसको एक सीमेंट से बने हुए या कहीं लोहे से बने हुए बार्स के बीच में रख दिया जाता है, व्हेन ही वॉज लॉक्ड ही अनएबल टू डू एनीथिंग, वहाँ पे इंसान डरता नहीं है उससे और बड़े ध्यान से वो उसको देखता है। स्टॉकिंग टू फॉलो, वॉच एंड बॉदर कॉन्स्टेंटली इन अ वे दैट इज़ फ्राइटनिंग, डेंजरस, द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। और उसके अंदर वो चलता भी है तो जैसे उसके चलने से घूमने वालों के या देखने वालों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं होता। जो प्राउडनेस उसको जंगल में होती है, जो वैल्यू उसकी जंगल में होती है, वो उस केज के अंदर नहीं है। यहाँ पे वो असहाय सहाय, भले वो वही बाघ है जो कि जंगल में था, बट द सिचुएशन इज़ जस्ट चेंज। वहाँ पे वो फ्री था, आज़ाद था, और यहाँ पे वो जेल के अंदर या कहीं एक छोटे से पिंजरे में बंद है। वो पिंजरा भले चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन उसकी वो जो प्राउडनेस है वो वहाँ नहीं दिखती। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes. He hears the last voice, और रात में जब वो पिंजरे में होता है तो अंतिम आवाज़ जो आती है वो पेट्रोलिंग कार्स की, यानी लोग जो देखने आते हैं उस जगह की कोई जानवर तो ठीक ठाक से है ना, कोई इधर उधर तो भागा नहीं है, तो उनकी आवाज़ जो है वो लास्ट में पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनता है, अपनी आंखों से उनको देखता है। एट द बिलियंस स्टार्स। अब ये दोनों ही चीज़ होती है। पेट्रोलिंग कार्स जो है रेंजर्स के द्वारा जंगल के बाहरी एरिया में भी पेट्रोलिंग होती है ताकि कोई शिकारी जाके उनका शिकार ना करे, जानवरों का शिकार ना करें। और वो जो बाघ है वो इन पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ को देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स और ओपन स्काई के नीचे विथ हिज सेम प्राउडनेस। यहाँ पे लेस्ली नॉरिस जो कि इस पोएम के राइटर हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इन दोनों ही परिस्थितियों को एक साथ प्रेजेंट किया है। कभी वो हमको जंगल के बाघ की स्थिति को दर्शाते हैं और कभी हमें उस जू में पिंजरे में बंद उस बाघ की स्थिति को दर्शाते हैं, और दोनों को कंपेयर करके बताते हैं कि दोनों के आज़ादी में, दोनों के परिस्थिति में क्या अंतर है और कौन ज़्यादा अच्छा प्राउडली और कौन नेचुरल हैबिटेट में है और किस तरीके से उनकी आदतें उस हैबिटेट में रहने के कारण बदलती हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जो कि लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। उम्मीद है आपको इस पोएम का थोड़ा अर्थ समझ में आया होगा। नथिंग इज़ देयर, ओनली द कंपैरिजन, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।
Have a good day.